Good morning, student. And today we are going to discuss the next numerical based on the syndrome decoding. The numerical is that a 6,3 linear block code is generated by the generator matrix G for a particular code word transmitted the received code word is 1 0 0 0 1 1. Find the corresponding data word transmitted. ओके ये आपका न्यूमेरिकल है और इसमें मैं आपको जरा मैट्रिक्स मैं जरा लिख दूं जरा मैं व्हाट इज द मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स इज H is equal to 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो ये आपका क्या कहते हैं पैरिटी चेक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड देन अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल 6,3 linear block code is generated by the generator matrix G. तो यहाँ पे G मेंशन नहीं है. अगर आपसे ये हमारी इस न्यूमेरिकल में अगर आपसे ये पूछ दे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, देन वी हैव टू कैलकुलेट द G फ्रॉम दिस वन बिकॉज आपको फार्मूला पता है कि उस फार्मूले में क्या होता है कि एक हमारा जनरेटर मैट्रिक्स में आपका एक पैरिटी मैट्रिक्स होता है एंड आल्सो द आइडेंटिटी मैट्रिक्स and this parity matrix is also calculated from this H. Okay, and after that for a particular code word transmitted, the received code word is this one and then कुछ code word आपके transmit किया गया and received vector is that is 1 0 0 0 1 1 and then find the corresponding data word transmitted, then what is the value of X हमें वो चीज find करना है. Then अगर हम first of all according to numerical what is the should be the procedure, as we know in the syndrome decoding we have to find the x s and s is equal to that is एक formula पता है अगर आपने पढ़ा भी होगा s is equal to y h transpose आपने ये पढ़ा होगा. अगर आप ये फाइंड करते हैं तो आपको एक 3 बिट का अकॉर्डिंग टू दैट what will be the value of n k q and according to that we get the value of s and this s should be compared with the matrix H transpose. ठीक है, if this will be match any of the row means according to the from the first row to the last row and that row represent the error in a particular bits. ठीक है, if this s is matched to the first row then here is the error in the first bit of the error pattern. If there is this s correspond to the row second then second जो बिट पोजीशन होगा वहां पे एरर होगा. इसके अकॉर्डिंग हम एरर को फाइंड कर सकते हैं. इफ वी गेट s is equal to all time 0 then we can say that there is the no error means the received vector should be the actually the data transmitter from the transmitter. Then first of all we have to calculate the s and I think so in that numerical यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये ऑफर होगा कि हमारा जो s की वैल्यू होगी वो s जो है
आपका किसी भी मैट्रिक्स एच ट्रांसपोज के रो से किसी मैच नहीं करेगा, देन व्हाट शुड डन, हम क्या करेंगे वो प्रोसेस डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो हम देखें अगर, तो प्रोसेस क्या होगा, एंड दैट सोल्यूशन, व्हाट इज द सोल्यूशन, that is r is equal to, we know that 1000011, ये आपकी r की वैल्यू है, and then the syndrome can be calculated, the syndrome can be calculated, कैसे करोगे, s is equal to y h transpose, and what should be the y already जो आपने r लिया हुआ है, या सिंपल हम इसको यहाँ पे r के फॉर्म में लिखें, because here we assume r is the received vector, and then r आपका हो गया 1000011, ठीक है, ये आपका हो गया। then what is the h transpose matrix ht, and a transpose means the H matrix converted to the H transpose by simply converting the row into the column and column into the row, and here we get and this column converted to the row, and simple आप लिखेंगे 1011100, this will be the first column, and then 0110110 111001, ओके। तो हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं यार, हमने बस यहाँ पे इसको बस इस तरीके से हमने H ट्रांसपोज हमने कर दिया हुआ है, और बस आपको आई थिंक सो जो ये नंबर ऑफ बिट्स होंगे वही आपके नंबर ऑफ बिट्स होंगे। वन थिंग मोर आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर, दैट इज फ्रॉम दिस वन, एंड हियर द लीनियर ब्लॉक कोड रिप्रेजेंटेड बाय द 6,3 by comparing with the generalized formula of the linear block code, that is n comma k, and we get n is equal to, here we get n is equal to 6 and k is equal to 3, and from here we know that the k is equal to n minus k, and we get 6 minus 3 is equal to 3, means all the parameter can be calculated by using a formula which are represented in the linear block code, okay। and this way here we get the n is equal to 6 and k is equal to 3 and q is equal to 3। तो आपका जहाँ पे q होगा, दैट इज q जो होगा, जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे वही नंबर ऑफ बिट्स आपके s में होंगे, मींस हियर वी कैन से दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ s इन द 3 बिट, and after that we can say that first of all here we simply multiply, before multiplying the two matrix, first of all we have to check what is the number of rows in the first, number of rows and columns in first, and what is the number of rows in the second। तो अगर आप देखें ये हमारा जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपका 1 क्रॉस, अगर इसको नीचे लिखते हैं 1 क्रॉस 6 है, और ये मैट्रिक्स आपका हो गया 6 आई थिंक सो, ये आपका है 6 क्रॉस 3 का है। Then after multiplication of the matrix, and we get this 2 6 means the column of the first matrix and the rows of the second matrix can be merged, and finally we get the matrix of the order of the 1 cross 3, and after calculation simply here we multiply and one by one, and they are placed in normal multiplication we place the plus sign between the two multiplication, but in that case here we put the XOR sign operation, हम वो यूज करेंगे। तो XOR में ये होता है कि if the number of ones are even then output is equal to 0, and if the number of one is odd then output will be the 1। इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, and finally here we get in this case we get s is equal to 110 ये आपका मिल गया। तो आपको ये कैलकुलेट कर लिया आपने। अब यहां देखिए अब प्रॉब्लम क्या ऑफर होगा, तो अगर प्रोसीजर वैसे आपका यही है, अब प्रोसीजर में क्या है कि अब यहाँ प्रॉब्लम ये ऑफर होगा, जैसे इस केस में क्या है कि आपको ये बताया गया था कि आपने एस ऐसे कैलकुलेट करेंगे, देन कैलकुलेट करने के बाद आप इस एस को यहाँ पे एस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स से किसी रो से मैच करेंगे, ओके, कि मतलब किस रो से वो मैच कर रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आपने ये तीनों वैल्यू अगर आपकी 0 है, इन दैट केस देयर इज नो एरर, बट अगर आपका ये होता है कि जो वैल्यूज आती है वो किसी ना किसी रो से वो मैच करेगा, आई थिंक सो इन दिस देयर इज अ 6 रो, ठीक है। तो 6 रो का मतलब है कि आपका यहाँ पे हमारे जो 6 बिट पैटर्न हमारा जो एरर होगा, जो एरर पैटर्न जो बिट पैटर्न होंगे वो 6 बिट्स होंगे, बिकॉज 6 रो करेस्पॉन्ड टू द 6 बिट्स, ओके। तो अगर आपका मान लीजिए पहले रो से अगर मैच करता तो आपका पहले बिट में एरर होता, अगर वो सेकंड रो से मैच करता तो सेकंड बिट में आपका होता, अगर थर्ड से मैच करता तो थर्ड बिट में होता, एंड सो ऑन।
बट इन दैट केस ऐसा एग्जांपल मैंने कंसीडर किया हुआ है कि आप सारे केस डिस्कस कर लें। इन दैट केस दिस 3 बिट्स कांट मैच टू एनी ऑफ द रो, तो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस, हमें क्या करना होगा यहाँ पे। तो हियर वी टेक द मींस हमें यहाँ पे एरर पैटर्न को हमें फॉलो करना होगा। एंड एरर पैटर्न को एक और आपको तरीका है कि आपका जो एस होता है, एस अगर एक आपने और फार्मूला देखा होगा, एस को फाइंड करने का एक और तरीका होता है, जैसे ई एच ट्रांसपोज आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ई है ये आपका एरर बिट पैटर्न है एंड इट शुड बी ऑफ 6 बिट। ओके, एंड आफ्टर दैट अब आपको सेम प्रोसेस वही फॉलो करना पड़ेगा। तो आप जो फॉलो करेंगे तो यहाँ पे जो ई होगा हमारा ऐसे करेंगे, दैट इज E1 E2 E3 E4 E5 एंड E6। इस तरीके से आप नेम कर लेंगे आप यहाँ पे 6 बिट्स को। एंड आफ्टर दैट अगेन प्लेस H ट्रांसपोज हियर आल्सो। H ट्रांसपोज आप जब प्लेस करेंगे मैट्रिक्स, तो वैल्यू क्या है आपका 1 0 1 1 0 0 एंड 0 1 1 1 0 0 1 0 and then 1 1 1 0 0 1। ओके, एंड आफ्टर दैट आप जब इसको सिंपली जो आपने मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया तो वही मल्टीप्लिकेशन आप फॉलो करेंगे। एंड फाइनली हियर वी गेट आपको जो मिलेगा मल्टीप्लाई होने के बाद वो इस तरीके से मिलेगा। और आपने देखिए आप एस आपने यहाँ भी फाइंड किया हुआ है बाय यूजिंग द फार्मूला आर एच ट्रांसपोज एंड आल्सो हियर वी गेट द बाय एस दैट इज दिस वन। तो यहाँ भी आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा द वैल्यू ऑफ दिस वन एस इज इक्वल टू आल्सो इज इक्वल टू द 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। तो वी हैव टू कंपेयर दिस वन विद दिस वन, मींस बिट्स बाय बिट्स को आप मैच करेंगे आप जो एस की वैल्यू को। एंड फाइनली हियर वी गेट आफ्टर कैलकुलेशन, सीधे मैं राइट कर रहा हूं, वो वैल्यू आपकी होगी दैट इज E1 plus E3 plus E4 and this will be equal to the 1 and also E2 plus E3 plus E5 1 and E1 plus E2 plus E6 is equal to 0। तो मैं आपको एक रोज में क्लियर कर दे रहा हूं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से तो ये आपका पहला एलिमेंट हो गया E1 हो गया, E2 से मल्टीप्लाई होगा गया, ये इससे मल्टीप्लाई E3 एंड देन हियर वी गेट E4। बाकी आपके तीन टर्म आपके 0 में, तीन टर्म आपके 1 है, फाइनली वी गेट E1 E3 एंड E4। और ये आपका जो सम लिखा हुआ है यहाँ पे आपका ये XOR का ऑपरेशन होगा। देन सिमिलरली दिस सेकंड आप इसको देखेंगे तो आपको E2 टर्म मिलेगा, E2 E3 एंड E5 एंड लास्ट E1 प्लस E2 प्लस E6। ये आपको मिल गया एरर पैटर्न जो मिलेगा एंड दिस शुड बी कंपेयर्ड विद दिस वन। तो इसी तरह हमने पहले वाले एलिमेंट को 1 से कर दिया, इसको सेकंड को इससे और इसको हमने तीसरे से कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया। एंड आफ्टर दैट व्हाट शुड वी डू, अब हम यहाँ हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। मींस व्हाट्स इनटू द वैल्यू ऑफ द एरर पैटर्न, हमें यहाँ एरर पैटर्न को फाइंड करना है मींस। और ये हमारा क्या है, और एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारा जो एक्चुअली E है, E इज इक्वल टू E1 E2 E3 E4 एंड E5 एंड वन थिंग मोर दैट इज E6। ये आपका है 6 bit of the error pattern। So here we have to calculate and what is the value of the E1 E2 E3 E4 and E5 and then after getting the all the values all the 6 error pattern bits we get the error pattern। एरर पैटर्न अब मिलेगा, देन आपको करना क्या है, आपको बस उस एरर पैटर्न को y के साथ एक्सॉर करेंगे, मींस जो हमारा r जो रिसीव वेक्टर था, देन वी गेट द एक्चुअल। तो यहाँ पे हम कुछ चीजें कंसीडर करेंगे मींस आफ्टर हिट एंड ट्रायल मेथड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हमारा जो E निकल के आएगा वो आपका आएगा 0 0 1, ये आपका निकल के आएगा। अगर आप कंपेयर करें यहाँ से E1 is equal to 0, E2 is equal to 0, E3 is equal to 1, E4 E5 E6 is equal to 0। ये हिट एंड ट्रायल मेथड से है, अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा आपका होगा भी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चेक कर लेना आप लोग, और जो हमने एरर पैटर्न लिखा हुआ अगर आप इसमें देखेंगे तो सारी कंडीशन तो फुलफिल करेंगे। ठीक, एक चीज आपको और बता दे रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं कि एक चीज आपको और खासकर ये ध्यान देना है कि हमारा जो एरर पैटर्न होना चाहिए, जैसे आपका 6 बिट का है तो 6 बिट में कोई एक बिट ही हमारा 1 होगा, ये ध्यान दीजिएगा।
हमारा कोशिश ये करना है हिट एंड ट्रायल मेथड में, ठीक है, ना कि एक से अधिक आपको बिट्स आपके 1 हो, ठीक है। अगर आपका ऐसा, अगर आपको, बिकॉज सिंड्रोम डिकोडिंग के हेल्प से हम जो है सिंगल एरर को ही हम डिटेक्ट करके उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मींस हमारा 1 का मतलब है कि हमारे जो एरर पैटर्न में हमारा जो 1 होगा सिर्फ किसी एक बिट पे ही होगा, ठीक है। आपको ये खासकर ध्यान देना है। तो जब वो एक बिट पे होगा आपका, तो मींस क्या है कि हमारा एक बिट पे ही हमारा 1 होगा। इस तरीके से ये होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका ये एरर पैटर्न फॉर्म होगा या फुलफिल हो जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो इन द प्लेस, इफ वी प्लेस 1 in place of the E3 and after calculating, after by applying hit and trial method, we get this error pattern. And finally we get and what is the transmitted vector? ट्रांसमिटेड वेक्टर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपका ई रहा, और दैट इज 0 0 1 0 0 0, ये आपका हो गया एक्सऑर ऑपरेशन हो गया। और एक्सऑर आपका क्या था, रिसीव वेक्टर, आई थिंक सो 1 0 0 1 1, एंड वी गेट, इन दोनों का एक्सऑर लेंगे तो आपका हो गया 1 0 1 0 0 1। ये आप इसको लेंगे पर अच्छे से और लिखिए जरा, आप यहाँ पे लिखेंगे तो हम यहाँ पे आपका जो था 1 0 0 0 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू आप देखेंगे तो 1 0 1 0 1 1। दिस इज द ट्रांसमिटेड वेक्टर, दिस इज द आंसर ऑफ दैट न्यूमेरिकल। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, और ये तो मैंने ये एक्सेप्शनल केस न्यूमेरिकल लिया है कि आपका जो एस फाइंड हुआ था इस केस में वो किसी रो से मैच नहीं किया एस ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स से, बट इन नॉर्मली केस वो किसी न किसी रो से मैच करेगा। तो सिमिलरली जो आपने हिट एंड ट्रायल मेथड आपने यूज किया था वो मेथड आपको नहीं लगाना है, वो ऑलरेडी जिस नंबर पे आपका जिस रो से मैच करेगा उस पर्टिकुलर रो के बिट्स पोजीशन में हम एरर को इंडिकेट कर दें, दैट इज प्लेस 1, बाकी रिमेनिंग 0 होगा, वी गेट द एरर पैटर्न एंड सिंपली वी फाइंड दिस वन। इस तरीके से ये आपका न्यूमेरिकल था, हमने बस ले लिया था आपको समझाने के लिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इन दैट यूनिट, ये आपका एक लास्ट टॉपिक इस यूनिट का है, वो हम डिस्कस कर दे जरा। ये आपका है सॉर्टेड एंड extended linear block codes। तो अभी एक्चुअली ये आपका एक्सटेंडेड लीनियर ब्लॉक कोड बेसिकली है क्या, इट इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द लीनियर ब्लॉक कोड एज वी नो। अभी हमने लीनियर ब्लॉक कोड पढ़ा, हमने बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल हमने कंसीडर किया, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन द हैमिंग कोड, एंड आल्सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग थ्रू द डिकोडिंग प्रोसेस बाय यूजिंग द सिंड्रोम डिकोडिंग, डिस्कस कर लिया सारे हमने। एंड देन एज वी नो आपका जो एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स था एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल H, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द जनरेटर मैट्रिक्स, एंड बाय यूजिंग जनरेटर मैट्रिक्स वी गेट द कोड वर्ड। एक तो वो आपका तरीका है, एंड आल्सो दिस मैट्रिक्स इज यूज्ड इन द प्रोसेस टू डिटेक्ट द एरर एंड करेक्ट देम, सारी चीजें आपने पढ़ लिया हुआ। then we can say that here the parity check matrix plays a very important role in the linear block code, yeah, we can say that in the decoding and the coding process of the in that linear code। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने पढ़ा था कि जैसे इसमें हम करते क्या है, मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, एन एन कॉमा के लीनियर ब्लॉक कोड इज completely specified by its parity
check matrix H. We know that ये मैं पहले बता चुका हूं. And if one column of zero elements abstract last element and one rows edge added to the parity check matrix, then code is specified by such check matrix is known as extended linear ब्लॉक कोड. ठीक है, तो इसका अर्थ मैं फिगर चीजें बना दे रहा हूं, मैं वो सीधे क्लियर ही हो जाएगा आपका. एच ई दिख रहा है फिगर आपको. एच ई इज इक्वल टू आपका ये हो गया पैरिटी चेक मैट्रिक्स. ऑलरेडी जो आपने पढ़ा था लीनियर ब्लॉक कोड से, पैरिटी चेक मैट्रिक्स एंड देन आप ऐड कर देंगे दैट इज लास्ट एलिमेंट इज 1 एंड हियर 1 1 1 अप टू 1 इस तरीके से. देन मैट्रिक्स वुड बी ऑर्डर ऑफ m+1 क्रॉस n+1. ओके, तो यहाँ पे जो चीजें आपको दिख रही हैं दैट इज अबाउट द लीनियर कोड. यहाँ पे एक्सटेंड किया गया लीनियर कोड को एंड फाइनली वी गेट मींस हियर वी ऐड द वन रो एंड वन कॉलम. आप जब ऐड करेंगे तो आपने जो वन कॉलम ऐड किया है, तो वन कॉलम जो ऐड किया है ऑल द एलिमेंट्स शुड बी वन एक्सेप्ट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द दैट कॉलम लाइक दिस. ये आपका पैरिटी चेक मैट्रिक्स हो गया. हियर वी ऐड द एलिमेंट, ये आपने एलिमेंट्स को ऐड किया हुआ है, लास्ट कॉलम है. ऑल द एलिमेंट्स शुड बी 0 बट लास्ट एलिमेंट इज 1. ये एक्सेप्शनल केस आपका यहाँ पे है. सिमिलरली बिकॉज आप जो ऐड कर रहे हैं लास्ट रो को आप जो ऐड करेंगे, आपका एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे एंड ऑल द एलिमेंट्स शुड बी द 1, इसलिए यहाँ पे 1 रखा गया है. तो ये ऐड करने के बाद एंड फाइनली द कोड स्पेसिफाइड बाय सच पैरिटी चेक मैट्रिक्स इज नोन एज एक्सटेंडेड लीनियर कोड. एंड देन हियर आल्सो द matrix can be printed by that is one row and one column increased. Then we can say that here if we say in the linear block code there is m cross n matrix अगर आपका है, then here one row and one column add up and we get the m+1 and n+1 matrix आपका फॉर्म होगा आपका. एंड व्हाट शुड बी इसका फायदा क्या होगा आपका? इसका फायदा आपका ये है कि आपका एडवांटेज यही है कि नॉर्मल हम यहाँ पे जो डिटेक्ट करते थे लीनियर ब्लॉक कोड में जो एरर डिटेक्ट करते थे एंड दिस शुड बी ऑफ मतलब 1 बिट था आपका, लेकिन हम यहाँ पे 2 बिट्स के एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड हियर आल्सो डीई मिनिमम मींस हैमिंग डिस्टेंस. इस केस में हमारा जो हैमिंग डिस्टेंस हमारा जो आपका था दैट इज डीई मिनिमम इज इक्वल टू 4. और आपको पता है उस वाले केस में हमारा चीज क्या था, 2 था आपका. ये कुछ मैंने ब्रीफ किया आपको है दैट इज अबाउट द एक्सटेंडेड लीनियर ब्लॉक कोड एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 4 एंड दिस इज ऑल अबाउट आल्सो द टुडे टॉपिक. ओके, थैंक यू.